to another transmission, another episode, of a Desi Alien. Another episode of your one and only Desi Alien. I'm just gonna continue because I had to cut my transmission short in the last video because the weather became horrible. The weather was horrible basically when I was coming back from Toronto. So again, I just want this to be a continuation of the Don't Quit India movement, the Don't Leave India movement, basically, as to why is it that it's not going to be worth it for 99 point, a lot of people. And we were just talking about the Gen Z protests. Rather, I was just talking about the Gen Z protests and the ramification के Gen Z के protest से कैसे लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुके हैं, वो बहुत ज़्यादा they are angry. A lot of Instagrammers, a lot of content creators saying that, man, we should definitely leave India because इस देश का अब कुछ नहीं हो सकता. This country has gone to the dogs, so on and so forth, right? So as I was saying, that this thing has happened, the reason why it's happened and the reason why there's so much anger is, as I was saying, that in the previous time, the previous government party, the previous party, it used to have a certain amount of reservation which the current establishment has just removed, because of which these things have accelerated, because the competition and everything has increased a lot, and that's why they couldn't really control the level of corruption. This is not a governmental problem per se. I would say this is more like the societal problem. You have to remember, India is the largest democracy in the world with so many people, and yet you have to keep everybody together. It's not an easy country to govern. ये बहुत ही difficult country है मेरे भाई. आसान नहीं है भारत में कुछ भी करना. Compared to that, with all due respect to Mr. Sonam Wangchuk sir and everybody from the Cockroach Janata Party and all of that, I think they all did a phenomenal job. The youth won in a way, but I would say that it is not a reason for people to just give up on India by constantly bringing and misplacing their anger without really knowing what the crux of the situation is, right? Like, without knowing what the population is, without knowing all the so many different factors that make India a great place but also make India a problematic thing, right? It's one of the reasons why you shouldn't really just focus on the anger portion. सिर्फ गुस्से से काम नहीं चलता मेरे भाई. गुस्से को अपने को अच्छे से प्लेस करने के बाद you will achieve good catharsis. आप गुस्सा करके सिर्फ ये कह के कि नहीं अब ये नहीं हो सकता and all of that, it's not a good thing to good attitude to have, I feel. Obviously now that that guy has resigned and the government will definitely take strict measures, but then these things will keep on happening. It's a transition from being a developing to developed nation, so slow and steady it's going to happen as long as the essence of India remains the same. Constantly I have said there are so many advantages that India has over so many other nations, which people forget. There is obviously the Gen Zers, they are young people, there's young blood, so you kind of react in an extremely aggressive manner. Impulses are high, hormones are high,
So you're definitely gonna be extremely, how do I say? You will be, I wouldn't say destructive, but I would say it's a bit more unrefined, whether it's the use of language, so on and so forth, which was brought up. तो मैं तो ये कहूँगा ना भाई कि इट शुडंट मैटर बहुत ज़्यादा, क्योंकि ओवरऑल अगर आप डील देखो भारत ना छोड़ने की, वो एनी हाउ ओवर एनी अदर कंट्री अच्छी डील होगी. And I am going to explain a lot more the way I have explained in my previous videos also. मैं इसको अच्छे से explain करूँगा भाई कि ये क्यों है ऐसा, कि क्यों मुझको लग रहा है कि हमें इस तरह से सोचना चाहिए. Okay? Now let's say if you consider the protest that has happened and you consider the impact and how things have sped up in general. Okay, let me first ये turn ले लेता हूँ मैं. Man, it's a tough road. This is a tough road for a sport bike, dude. It's a tough road for a sport bike. A lot of gravel, stress, a lot of stress in that road. Okay, so yeah, what I was saying was that, you know, this protest and the related Gen Z anger, because it kind of exploded in this age of social media, the impact is a bit larger, right? There's just a lot of anger because of social media. That churning is there, and that churning, people tend to overreact. I feel they tend to overreact. That's the simple fact. If a few years ago, if you would have taken away the thing with social media, if you to take away social media, the role of social media, basically, if you minimize it, the anger won't be as much. You just, social media exaggerates. A pin feels like a bat, a pin feels like a knife, like a stab, compared to what it actually is. और ऐसे ही होता है. इसी वजह से इस सोशल मीडिया की एज की वजह से इतना बड़ा एक अवेयरनेस है, वो ठीक है, लेकिन अवेयरनेस के साथ ओवर रिएक्शन आता है बहुत ज़्यादा. और उस ओवर रिएक्शन में लोग जो है वो अपना सब्र एंड अपना पेशेंस, दे लूज इट. एंड देन यू सी कंटेंट क्रिएटर्स making these videos. Obviously the guys who are already abroad, like there were so many channels who were like, oh see, देखा हमने तो कहा था भाई कि इंडिया में, इसलिए तो हमने इंडिया छोड़ दिया. देखा, हम कह रहे थे ना कि इंडिया में ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम्स तुम अब्रॉड मूव हो जाओ, ये तुमको प्रॉब्लम्स आने वाले हैं नहीं. ये क्या चूतियाप्पा कर रहे हो यार? लाइक व्हाट काइंड, आई एम सॉरी टू यूज़ दैट टर्म, बट देन दिस इज़ कि मतलब थोड़ा कुछ ज़्यादा ही हो गया. ये कुछ ज़्यादा हो गया मेरे ख्याल से भाई. इतना भी ख़राब तो है नहीं दादा कि आप जिस हिसाब से ये, ओह शिट, ओह गॉड, आप जिस हिसाब से इसको पोर्ट्रे कर रहे हो, इस प्रॉब्लम को, जो कि इतना बड़ा है नहीं, फिर भी आप लोग उसको बड़ा चढ़ा के डे इन इंडिया वर्सेस डे अब्रॉड, ये जैसे कि अब ठीक है, सीनरी ये तो होगा यार, डेवलप्ड कंट्री से आप कैसे कंपेयर कर सकते हो. लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ दैट
इसको पूरी तरह से ये कर देना, डिस्काउंट कर देना और पूरी तरह से ये कह देना कि ना ये ऐसा ही होगा, हम जो कह रहे हैं ये सही है। एंड यूजिंग दिस प्रोटेस्ट इंडिया को नीचे दिखाने के लिए इज़ नॉट द राइट अप्रोच, क्योंकि भाई जितने प्रॉब्लम है ना उतने सॉल्यूशन भी है इंडिया में। इंडिया कुछ ऐसी चीज़ देता है तुम्हें, क्या मेरा चल तो रहा है, पागलों की तरह बात तो नहीं कर रहा मैं। इंडिया कुछ ऐसी चीज़ देगा आपको जो कि बाकी कोई देश नहीं दे सकता। कुछ बहुत सारे प्लस पॉइंट है भारत में जो बाकी के किसी देश में नहीं है मेरे भाई, समझे। कोई मदर इंडिया जितना दयावान और मदर इंडिया जितना खुले दिल का देश नहीं है भाई, कि जो लोगों के लिए इतना ज़्यादा करता है। आप इंडिया में, अब इंडिया एक देश है जहाँ पे आप सोशलिज्म की बात करते हैं लोग पागलों की तरह। मैं कह रहा हूँ भाई इंडिया एक देश है ना जहाँ पे लोगों का ख्याल रखा जाता है, जहाँ पे लोगों को खाना खिलाया जाता है। ये बिन फुकट के चोचले करने वाले, अब ये तुम बोलोगे ना मुझे कि अब यार तुम तो हो यहाँ पे, तुम तो बाइक चला रहे हो वगैरह वगैरह वगैरह, तुम तो मस्त मज़ा कर रहे हो, बाहर रह के तुम मज़ा मारते हो, ये करते हो वो करते हो। यार मैं क्या कह रहा हूँ ना कि मैं जिस टाइम पे यहाँ आया था उस टाइम पे एक पॉसिबिलिटी थी इन चीज़ों का सब साकार होने की। अब पॉसिबिलिटी और ईज़ जो है इमिग्रेशन का वो चला गया है। ऑन टॉप ऑफ दैट मेरे कुछ ऐसे पर्सनल रीजंस है जिसकी वजह से मैं एक बहुत ही सोशल आउटलायर टाइप का आदमी हूँ। मैं बहुत ही यूनिक आदमी हूँ मेरे भाई। मैं, अरे बाप रे क्या है ये, मैं मतलब क्या कहूँ आपसे कि मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ कि जो मेन स्ट्रीम इंडियन सोसाइटी के इसमें आता है। ये इसमें मतलब ये नहीं है मैं स्पेशल हूँ या कुछ भी। मेरा भाग्य अलग है, मेरा भाग्य बहुत अजीब है। इस वजह से मैं, भाग्य की वजह से मैं कह सकता हूँ मैं यहाँ हूँ जहाँ हूँ। लेकिन आई डोंट थिंक कि मेरी लाइफ अब इंडिया के पहले लाइफ से अच्छी थी या कोई बहुत ही तगड़ा क्वालिटी ऑफ ये आया। ये मेरा भाग्य है। मैं अभी फ़िलहाल के लिए तो मैं इतना ही बता सकता हूँ कि ये भाई मेरा भाग्य है। ऐसा नहीं कि मैंने कोई एफ़र्ट मारा, मैंने कोई ये किया, बस मेरी डेस्टिनी थी, मुझे ये सब ये ऐसा हो गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इंडिया को भला बुरा कहता हूँ या फिर मैं इंडिया को गालियाँ देता हूँ। होंगे यार सिविक सेंस के अपने प्रॉब्लम्स है वगैरह, मैं तो मानता हूँ इन चीज़ों को। लेकिन तुम देखो ना यार कि एक डेवलपिंग कंट्री जो कि अभी जिसको इंडिपेंडेंस मिला है उसने काफ़ी अच्छी तरक्की की ना मेरे भाई, कंपेयर टू अदर थिंग्स, राइट। काफ़ी तरक्की की उसने यार, नहीं होती काफ़ी देश में तरक्की। 1 अरब लोगों को काफ़ी ज़्यादा गरीबी से बाहर निकाला उन लोगों ने। और एक जिसे कहते हैं ना डीमोटिवेशनल चीज़ मैं थोड़ी ज़्यादा देख रहा हूँ अभी। एक मुझे कोई तो कौन सा तो भी शेर है, इट्स अ फेमस शेर कि भाई इंसान गरीबी का समथिंग कि इंसान पैसा कम दे लेकिन गरीबी का लहजा ना दे, और समथिंग लाइक दैट, ऐसे कुछ तो है शेर। मैं भूल गया उसको क्या शेर था वो, ऐसे ही कुछ तो। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सेइंग इन उर्दू। एंड आई थिंक ये बहुत ज़्यादा फिट बैठती है यहाँ पे, क्योंकि कैसा है कि अभी ये परसीव्ड डेंजर सोशल मीडिया की वजह से बहुत ज़्यादा है। लोगों की कुछ नहीं, मेरे ख्याल से लोगों की सोशल मीडिया के माया की वजह से फट गई है। लोगों की हर चीज़ में फट गई है। सारे बच्चे पैदा करने को नहीं बोलेंगे, शादी करने को नहीं बोलेंगे, जैसे कि सारे लड़कियां खराब, सारे लड़के खराब, सारे मतलब गंदे गंदे लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे वगैरह वगैरह वगैरह। ये ऐसा नहीं है दोस्त, ऐसा जेन्युइनली नहीं होता काम। तुम लोगों को मतलब एकदम जस्ट बिकॉज एक गुमराह कर देते हैं लोगों को, और लोगों को ऐसा बताया जाता है कि देखो कितना ख़राब है और ये है। इस वजह से पीपल फॉल इनटू दैट ट्रैप एंड फ्यू बैड एप्पल्स इग्नाइट द फायर, और वो आग जो है वो बहुत बड़ा लपेटा ले लेती है।
यही बस मेरे ख्याल से हो रहा है भारत में, बाकी तो कुछ नहीं है भाई। बाकी जेन्युइनली मेरे ख्याल से फ़िलहाल जितनी तरक्की की है इंडिया ने वो बहुत ही इट इज़ इनसेन एंड स्पिरिट ऑफ इंडियंस जो है ना